चलिए स्टार्ट। Good morning, students. हाँ, My name is Rakesh Kumar Singh, and today I am going to start the first chapter of history of class 8. But you need to know that these books, see this book carefully. The New Longman, the Stars. This book of the social study will be introduced in your class in this year. So all of you purchase these books. In these books, the first chapter named is the modern period in Indian history, when, where and how. So in today's class, I am going to deal with this chapter. So as the name of this chapter, modern period in Indian history, when, where and how. In class 7, you have learned about the medieval history of India. In that medieval history, generally that history covered about the Delhi Sultanate, Mughal Empire, and few others. But in the medieval history, generally the role of Delhi Sultanate and the Mughal Empire played very important. In the class 8, we have to focus on modern history of India. So generally, question raised in our mind that which period, in which time, what is the period of beginning of the modern period in Indian history. So generally, it is considered when Britishers came to India and when they began to establish their empire, that time is considered as the beginning of modern time in India. And that particular time, here you can see, in 1757, the Battle of Plassey, and in 1764, Battle of Buxar. With these two battles, Britishers began to establish their empire. So we can say these two battles were the beginning of the modern history of India. But here it is also need to understand that the period or time of modern history is same in throughout the world. So here we need to understand. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम है, क्या ये पूरे वर्ल्ड में एक ही टाइम है? ऐसी बात नहीं है. The times of beginning times of modern history in Europe, India differ. If you talk about the beginning of modern history in Europe, so we can say that the French, with the French Revolution in 18th century, and after Industrial Revolution, we can say because modern history generally focus on the modern technologies, modern science. So with the Industrial Revolution in England, we thought that that was the beginning of the modern history in Europe. But in the case of India, these times was considered. Now I am going to, because before class 8, in class 7, in class 6, you have studied about the ancient history of India, medieval history of India. Now in class 8, modern history of India. क्लास 6-7 में आप एंशिएंट और मेडिवल पढ़ चुके हैं. तो हम बात यहाँ करते हैं टाइम, उसका पीरियड क्या है. तो आपको याद रखना है मेडिवल हिस्ट्री का टाइम याद करना है. द जनरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, द पीरियड और टाइम ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री इज कंसिडर्ड फ्रॉम द 6th century to the 18th century. So before this period, before 6th century, will be considered
ancient history of India, ancient history of India, and after 18th century, no, from 18th century, because these events, Battle of Plassey and Battle of Bauxite, took place in 18th century. So the period of medieval history from 6th century to the 18th century, because आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे क्लास 7 में कि जो औरंगजेब था उसका डेथ शायद हुआ था 1707 में उसका डेथ हो गया था। उसके बाद जो धीरे जो है जो मुगल एम्पायर जो था वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था, और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कमजोर होते ही चला गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो पूरे इंडिया में जो है छोटे छोटे किंगडम जो है वो जन्म लेना शुरू कर दिए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो मुगल एम्पायर जो था वो बिल्कुल कमजोर हो गया, उसके पास शक्ति नहीं थी कि वो छोटे छोटे किंगडम को जो है वो कंट्रोल कर सके। रिजल्ट ये हुआ कि पूरे देश में फिर से जो है छोटे छोटे किंगडम जो है वो बनना शुरू हो गए, जो पहले मुगल एम्पायर के पार्ट थे। तो ये हो गया टाइम मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री के बारे में जो इसका डेफिनेशन जो है आप क्लास 6 में पढ़े हुए हैं, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़ रहे हैं। जनरली अगर बात करें एक वन सेंटेंस में तो सिंपल होता है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। इन वन लाइन डेफिनेशन, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हम यही बोल सकते हैं हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। हम ये भी बोल सकते हैं हिस्ट्री इज द सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। सो एक विद्वान ने ये भी कहा है हिस्ट्री इज एन unending dialogue between past and the present. We are present and we try to understand our history. Here you can see dialogue. Dialogue मतलब क्या? बातचीत। अभी भी still now we try to understand our past. Even there are many books have been published. Many writers have published their books. But still we research our history. Still and also after us, that process will be continued. So this is the unending. इसका कोई अंत नहीं है, हमेशा जो है ये प्रोसेस चलते रहेगा। जो प्रेजेंट जो होगा, जो करंट प्रेजेंट जनरेशन जो होगा, वो अपने हिस्ट्री को दोबारा वो उसको अपने तरीका से उसको जानने का प्रयास करता है। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री इज एन unending dialogue between past and present. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, अपने बुक में दिया हुआ है ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड। ट्रांजिशन टू मॉडर्न पीरियड। ट्रांजिशन मतलब क्या? ट्रांजिशन मतलब एक वो समय, वो टाइम जहां पर जो है मेडिवल हिस्ट्री का अंत होते जा रहा है और मॉडर्न का शुरुआत हो जा रहा है। मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पर हम एक चेंज देखते हैं, एक बदलाव देखते हैं। हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का आगमन शुरू हो गया और मेडिवल का अंत होना शुरू हो गया। इसलिए आपको मैंने बताया था कि द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 18th सेंचुरी, मुगल एम्पायर का खत्म होना, कमजोर होना, जैसा कि मैंने बताया तो औरंगजेब के डेथ के साथ ही जो है मुगल एम्पायर वो धीरे धीरे वो कमजोर होना शुरू हो गया। क्योंकि उसके बाद ऐसे कोई किंग नहीं आए, ऐसे कोई रूलर नहीं आए जो मुगल एम्पायर को संभाल सके, उसे संभाल के रख सके। तो हम बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेट होना, उसका बिखरना और यूरोपियन का इंडिया में एडवेंट होना, उनका आना, उनका अटैक, उनका पदार्पण, तो वो एक जो था वो एक ट्रांजिशन पीरियड हुआ मॉडर्न टाइम का। उस टाइम में 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनी, ऐसा यहाँ ये बात जानना है, ऐसा नहीं कि वे लोग यहाँ पर आए अटैक करने के लिए, यूरोप के लोग वे यहाँ पर आए बिजनेस करने के लिए।
व्यवसाय करने के लिए। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा क्यों जरूरत है व्यवसाय करने का। तो यहाँ देखिए एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। जब हम बात करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल एंड नीदरलैंड, इससे साथ साथ हमें जानना होगा वर्ल्ड का डेवलपमेंट, उस समय वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा था और कैसे उस टाइम के वर्ल्ड के डेवलपमेंट के वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री जो है इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ। उसमें क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड से जो है औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत हो गया था। जो काम पहले आदमी करते थे ज़्यादा समय लेकर और वो कम प्रोडक्शन करते थे, अब वो सारा काम मशीन से होने लगा। इससे क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मशीन, द प्रोडक्शन इंक्रीज मोर एंड मोर टाइम्स एट द सेम टाइम इन शॉर्ट पीरियड। तो अधिक प्रोडक्शन शुरू हो गया तो यूरोप के कंपनियों को उन प्रोडक्ट को बेचने के लिए बाजार चाहिए था, तो उसको बेचने के लिए वो बाजार खोलना शुरू की। उनका पता था कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, एक रिच कंट्री है, और उसी बाजार को खोजते खोजते कराते जो है यूरोप के जो है जो सेलर जो थे वास्को डिगामा, कोलंबस, ये लोग जो है ये भारत जाने का रास्ता खोलने के लिए निकल पड़े। कोलंबस चला गया अमेरिका और वास्को डिगामा आ गए इंडिया। इस प्रकार जो है वास्को डिगामा के आने के साथ जो है यूरोपियन को इंडिया का आने का रास्ता मालूम चल गया, और उसी रास्ता को फॉलो करते करते जो है ब्रिटेन, नीदरलैंड, फ्रांस इत्यादि के लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए। तो क्या हम देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काल में जो है जब प्रोडक्शन अधिक होना शुरू हो गया तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए यूरोप के लोग जो है इंडिया में आए। तो हम ये कहा जा सकता है कि जो यूरोपियन लोग आए, जो ब्रिटिशर्स आए, वो यहाँ पर एक ट्रेडमैन, एक मर्चेंट, एक व्यापारी बनकर आए और वे अपना व्यापार करना शुरू किए। उसी के साथ साथ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ साथ जो है यूरोप में एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसको नाम दिया गया नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद क्या है? ये राष्ट्रवाद है अपने देश से प्रेम, अपने देश से लगाव। देखिए लिखा है द फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स वन्स ओन कंट्रीज। जब लोग के मन में पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि जो किंग होता था, मराठी होता था, वो अपने तलवार के दम पर जो है वो जितना एरिया को कब्जा कर लिया वो उसका अपना देश हो गया। लेकिन वहाँ के लोग उसके प्रति लॉयल नहीं थे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब लोग के दिल में ये भावना जग गई कि ये मेरा देश है, ये मेरा जमीन है और हमें इसके लिए, हमें इसे बेहतरीन करने के लिए हमें लड़ना है, मरना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म का, इसका भी जो है काफी अधिक प्रभाव पड़ा इंडियन हिस्ट्री पर। तो हम इतना बात जान चुके, अब हम थोड़ा सा बात जानते हैं चैप्टर में लिखा हुआ सोर्स। तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो है आप पढ़े हैं कि याद रखिएगा जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका अगर कोई सोर्स नहीं है तो हिस्ट्री नहीं है, वो कहानी है। बिना किसी सोर्स के, ऑथेंटिक सोर्स के अगर कोई भी बात बोलते हैं तो हिस्ट्री का मैटर नहीं हो सकता है, वह कहानी हो सकता है। इसीलिए हिस्ट्री में सोर्स का बड़ा अधिक महत्व है। आप एंशिएंट में फर्स्ट चैप्टर में सोर्स के बारे में पढ़े हुए हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ डाटा। आपने क्लास 7th में मेटाबॉलिज्म पढ़ा तो क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। और क्लास 8 में जो है जो कुछ हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं उसका सोर्स है वो बुक, वो न्यूज़पेपर, वो मैगजीन, गवर्नमेंट रिपोर्ट। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट रिपोर्ट का, ये जान जाइए कि अंग्रेजों के आने के बाद जो है बहुत से काम सिस्टमेटिक हुआ। अंग्रेज एक एडवांस वे से रूल करना चाहते थे। वो पहले इंडिया के पास सर्वे कराए,
और सर्वे करा के पूरा रिकॉर्ड को उन्होंने रखना शुरू किया। तो आज भी उस रिकॉर्ड को हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। उस रिकॉर्ड के हेल्प जो है हम उस टाइम के सोसाइटी को हम जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। डायरी, बहुत से ऐसे ट्रेवलर्स आए जो इंडिया में घूमने के लिए आए, जानने के लिए आए, समझने के लिए आए, और यहाँ जब आए तो अपना डायरी लिखी। उस डायरी में जो है उस टाइम के इंडिया के बारे में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। तो उसके हेल्प से जो है हम इंडिया के हिस्ट्री को जानते हैं। फोटोग्राफ, पेंटिंग, तो बहुत ही यूरोपियन पेंटर है, फोटोग्राफर है, जो ये राजा महाराजा का या उस टाइम का जो घटना घटता था, इंसिडेंट होता था, उसको जो है वो अपने पेपर पर, कागज पर जो है उसको जो है वो उतारने का प्रयास करते थे। तो सारा पिक्चर जो है अभी मौजूद है। उस पिक्चर को देख के भी हम समझते हैं कि उस टाइम का सोसाइटी कैसा था। उसी तरह से पेंटिंग हुआ, आर्टिफैक्ट काटने की, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर, उस टाइम का जो कुछ भी बिल्डिंग बना हुआ है, एग्जाम्पल के लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट दिल्ली हो गया, या आपका जो मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी, जिसका पहले नाम था विक्टोरिया मेमोरियल। ये कुछ ऐसे बहुत से ऐसे बिल्डिंग हैं इंडिया में जिसको देख हम समझते हैं उस टाइम पर जो है स्थापत्य कला कैसा था, वो क्या पैटर्न था स्ट्रक्चर का। तो हम बात कर लेते हैं द बंगाल गजट। ये जान लीजिए कि द बंगाल गजट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया which began to publish from 1780 in कोलकाता। तब यार अगर जीके क्वेश्चन भी है तो बंगाल गजट जो था ये पहला इंडिया का न्यूज़ पेपर जो था जो कोलकाता से 1780 में पब्लिश होना शुरू हुआ। और एक बुक की बात करते हैं, लास्ट में बात कर लेते हैं। बुक जो है एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। एक जेम्स मिल जो थे, जेम्स मिल जो है स्कॉटलैंड जो ब्रिटेन का पार्ट है उसके वो स्कॉलर थे। वे जब इंडिया में आए तो उनको कंपनी ने कहा कि आप इंडिया की हिस्ट्री लिखिए। तो एक किताब लिखे, उसका नाम क्या दिया गया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो टाइम था 1870। आपको जानना चाहिए बात, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने उसको एक सेकुलर फॉर्म दिया, रूप दिया। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को जो है लिखा इंडियन हिस्ट्री इन हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड इन ब्रिटिश पीरियड। यानी कि एंशियंट को उन्होंने एंशियंट नहीं कहा, उसको उन्होंने कहा हिंदू पीरियड, कि उस टाइम में इंडिया में जो भी सारे किंग थे, राजे थे, वे सारे हिंदू थे। तो उन्होंने उसको हिंदू नाम दिया, न कि उसको नाम दिया एंशियंट। जेम्स मिल ने जो मेडावल हिस्ट्री था उसको उन्होंने नाम दिया मुस्लिम पीरियड, क्योंकि उस टाइम में जो कुछ भी इंडिया के रूलर थे वो सारे मुस्लिम थे। बट एक क्या उन्होंने आगे किया कि मॉडर्न को उन्होंने कैथोलिक नहीं कहा, क्रिश्चियन नहीं कहा, उसको उन्होंने नाम दे दिया ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के माध्यम से वो दिखाना चाह रहे थे कि इंडिया में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो ब्रिटिशर जो थे, वो इंडिया में क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या चेंज किए। अब लास्ट में पूरे क्लास में जो है हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे यूरोपियन जो है वो इंडिया में आए, कैसे उन्होंने अपना सत्ता का विस्तार किया, हाउ दे एक्सपेंड देयर रूलिंग एरिया। एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो स्टडी अबाउट द हाउ आवर नेशनल लीडर, हाउ इंडियन बिगन टू फाउट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। तो कैसे हम गुलाम बने अंग्रेजों का और फिर कैसे हम उस गुलामी के जंजीर से बाहर निकले, इन सारी बातों को जो है हम क्लास 8 में हम समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेज यहाँ पर आके उन्होंने क्या क्या बदलाव किया, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला, कैसे हमारा सोसाइटी में बदलाव हुआ, कैसे हमारा इकोनॉमिक लाइफ में बदलाव हुआ। ये तमाम तरह की बात जो है हमें क्लास 8 के हिस्ट्री में पढ़ना है। तो आज जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो